Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is MySQL functions. In this section, this section gives you the most commonly used MySQL function, including string function, date function and time function. String function, date, time function and maths function. Let's talk about the meaning of function. A function, or say inbuilt function, is a special type of predefined. These are predefined means already given by MySQL. Predefined command set that performs some specific task, or say perform some operation and returns single value. Listen, all function always return a single value and it takes number of arguments and return single value. Let's have a look on some inbuilt functions based on string. These are types of MySQL function, and the first function is string function. String function. String means characters. The string function of MySQL can manipulate the text string in many ways. You can use string function in order to manipulate at the time of query. You can't, save modification in actual data, but you can modify your report with the help of these text functions, or say string functions. First one is concate. C-O-N-C-A-T. Concate function. Actually, this function add, or say merge two string to form one string. It merge, or say join given strings in order to form a single string. Concate is used to join the given string. Second, length function. Length is a most important function. You have heard this term in Excel, just like len function. Len, len function. Len means length, or say it define, or say it count number of characters. See, number of characters present in a string, or say column, इंक्लूडिंग स्पेसेस. ये स्पेस भी काउंट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने ये लिखा है पूनम BHATT, पूनम भट्ट, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि इसमें कितने लेटर्स हैं तो ये काउंट करके देगा. जैसे ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अगर हम ध्यान से देखें तो 11 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये कितना रिटर्न करेगा? 12, just because it include spaces. Here is a space. M in between M and B, there is a space, and space is a character in computer language. Okay, it include spaces. Next is left. Next function is left function. What it does? Left function is used to extract number of characters from left side. लेफ्ट साइड से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, रिटर्न करने हैं, तो आप यूज करेंगे लेफ्ट. जैसे मैंने ये लिखा है लेंथ. अगर मैं यहां से 3 कैरेक्टर चाहूं तो 1 2 3,
तो मैं लेफ्ट लिखूंगा, अंदर लेंथ लिखूंगा और एक पैरामीटर और पास करा दूंगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये देखो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। यहाँ पे मैंने 5 लिखा है तो लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर वो उठा के दे देगा। अगर मैंने यहाँ 2 लिखा है तो लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर वो उठा के दे देगा। पर ये कैरेक्टर आपके रन टाइम पे ही हो रहे हैं, एक्चुअल डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इज राइट। राइट फंक्शन क्या करता है, राइट से उठाता है, राइट से लेफ्ट साइड से, राइट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो ये लिखा ना, राइट फंक्शन रिटर्न्स द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि राइट साइड से काउंट करेगा और उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट लिखा है और एक टेबल है, उसके अंदर एक हेडिंग है टॉपिक में जो भी होंगे उसके यहाँ से राइट साइड से आप लोगों को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट इज INSTR, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर। एक्चुअली ये क्या करता है कि ये सर्च कंडीशन में बहुत ज्यादा यूज होता है कि उसका जो लोकेशन है, किसी भी वर्ड का लोकेशन होता है, मेमोरी में हर वर्ड का एक लोकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैं ये लिखता हूं ये, ठीक है, तो जो मेरा मेमोरी में जो लोकेशन होगा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं इसकी पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है ना। उसके बाद मैं अगर ये बोलता हूं कि I, तो NSTR फंक्शन क्या करेगा, मेरा जो इंडेक्स नंबर है या लोकेशन नंबर है उसको रिटर्न करेगा फर्स्ट ऑकरेंस पे जो मुझे मिल जाए। जैसे आई उसने यहाँ पे सर्च किया, फर्स्ट पे नहीं मिला, सेकंड पे नहीं मिला, थर्ड पे नहीं मिला, फोर्थ पे मिल गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4। यानी कि INSTR फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एड्रेस ऑफ या इंडेक्स नंबर या एड्रेस ऑफ सर्च कैरेक्टर और से सर्च स्ट्रिंग, यानी जो आप ये स्ट्रिंग पास करा रहे हैं वो किस पोजीशन पे आया है वो ये रिटर्न करता है। यहाँ पे नेम में अगर ई देखें तो ये नेम एज अ फील्ड नेम है, जो कि ट्रेनिंग कोई टेबल है उसके अंदर ये फील्ड नेम है, तो उसके अंदर हमने ये ई सर्च कराया है। देखिए किसी के उसमें ई है और किसी के नाम में ई है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या कराता है, फर्स्ट ऑकरेंस में। फर्स्ट ऑकरेंस का मतलब होता है, जैसे अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं सुनील लिम्बू LIMBU और मैं आई ढूंढ रहा हूं, तो आई इसमें 2 हैं, लेकिन जो ये फर्स्ट ऑकरेंस होगा जो पहली बार में आ जाए उसी का ये रिटर्न करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा फर्स्ट ऑकरेंस। सब स्ट्रिंग, जैसे हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज ये स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग करता क्या वो हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे यहां से लेकर यहां तक का कैरेक्टर चाहिए, यहां से यहां तक का कैरेक्टर चाहिए इस पूरे में से। दिस इज कॉल्ड अ पार्ट और से सब स्ट्रिंग। दिस इज कॉल्ड पूरे स्ट्रिंग का एक पार्ट, वो हम सब स्ट्रिंग या मिड, ये 3 फंक्शन है। इन तीनों फंक्शन का काम एक ही है, किसी भी स्ट्रिंग में से उसका कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेना। और जब पार्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें पोजीशन चाहिए होती है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 इंडेक्स नंबर, फिर यहाँ पे काउंट होगी 4 5 6,
यानी कि हमें 4 से स्टार्ट करना है और 1 2 3 कैरेक्टर्स चाहिए। फिर उसके बाद हमने लिखा SUBSTR और पास करा दिया पहले पूनम भट्ट, उसके बाद बोला 4th लोकेशन से 4th पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 चाहिए, तो यहां से क्या आ जाएगा NAM नम। तो ये हो गया आपका पार्ट और से सब स्ट्रिंग ऑफ गिवन स्ट्रिंग। तो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। अच्छा, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो हो गया इसका पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक है इसका नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर मैंने बोला कि -4 से हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 चाहिए, अब -4 तो ये -1 -2 -3 ये -4, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां से नंबर ऑफ कैरेक्टर गिनो 1 2 3 ONA ओना। ठीक है, तो इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग भी चलती है, सब स्ट्रिंग में रिवर्स इंडेक्सिंग भी चलता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि -4 पूछा है, तो जैसे ये हमारा ये नंबर लाइन होता है, तो यहाँ पे हमारे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गई 0 से साइड, और 0 से साइड वाले हमारे नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गई -2 -3 ना। और यहाँ से फिर हम काउंट करेंगे, ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे रहता है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और दिस इज कॉल्ड इनवर्स इंडेक्सिंग, रिवर्स इंडेक्सिंग और से नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो सब स्ट्रिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी काम है। फिर आता यू केस और से अपर केस। आप जो कुछ भी इसमें पास कराएंगे सब के सब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप लोअर केस में जो कुछ भी पास कराएंगे ये स्मॉल लेटर्स या लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आइए फिर इनका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले काम है कॉन्केट। कॉन्केट का काम होता है दो चीज को जोड़ना, दो गिवन स्ट्रिंग या नंबर ऑफ गिवन स्ट्रिंग को जोड़ना। फॉर एग्जांपल कि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि पासवर्ड अपने आप जनरेट हो जाते हैं जब भी हम किसी उसमें वन टाइम पासवर्ड जो भी हमारे पास आता है OTP वो अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने अपना नाम और ये नंबर फीड कराया तो एक पासवर्ड जनरेट हो जाता है। देखते हैं कि हम इसकी मदद से कैसे पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और लेटर्स। फॉर एग्जांपल कि मैं अपना ट्रेनिंग आईडी और सिटी और से ट्रेनिंग आईडी और से ये नाम मिला के मैं एक पासवर्ड जनरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। SELE सिलेक्ट कॉन्केट TE नहीं कॉन्केट। और सबसे पहले पास कराया मैंने, चलो नाम पास करा दो, जो आप पास कराएंगे वो पहले आ जाएगा। उसका ट्रेनिंग आईडी TRAINING ट्रेनिंग आईडी फ्रॉम TRAI ट्रेनिंग। ये देखिए, ओ इनका पासवर्ड बनाना था ना, तो यहाँ पे हम एलाइज नेम के लिए हम यूज करते एज पासवर्ड PASSWORD। आप ध्यान से देखिएगा कि सिलेक्ट के बाद जो कुछ भी आता है वो हेडिंग हो जाता है, लेकिन जब सिलेक्ट के बाद एक आपका पैरामीटर है उसका बाद एज आ गया है तो जो ये एज का जो कुछ भी आता है वो इसको रिप्लेस कर देता है।
अब नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा, पासवर्ड। देखिए दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है, मिस नीवा FD01 पासवर्ड हो गया। अब यही पासवर्ड आप किसी को भी भेज सकते हैं, मतलब जो ये इनके इनमें भेज दीजिए आप। तो ये आप लोगों ने पासवर्ड जनरेट कर दिया। जनरली इसी तरह से पासवर्ड जनरेट होते हैं कि आप ही के नाम में से या आप ही के जो आपने इंफॉर्मेशन फीड की होती है उसी में से लेफ्ट साइड का ले लिया, राइट साइड का ले लिया, मिड का ले लिया और एक पासवर्ड जनरेट करके आपको ही सेंड कर दिया। या कैप्चा कोड होते हैं, इसी तरह से जनरेट किए जाते हैं रैंडमली जो बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज लेंथ। इट रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। चलिए देखते हैं कि हमारे नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं ईच नेम में। सिलेक्ट LENGTH लेंथ। यहां हमने पास कराया है, क्या नाम है इसका, नेम। फ्रॉम TRAI ट्रेनिंग। पहले वाले में 9 कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको नहीं, क्योंकि ये तो कॉन्केट हो गया है ना। फर्स्ट वाले में 9, 1 2 3, ये डॉट भी एक कैरेक्टर है, 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9। नेक्स्ट वाले में यहाँ तक तो हमको 9 मिल गया, 10 11। देखिए नेक्स्ट वाले में 11 है, फिर यहाँ तक हमारा 9 है, 10 9 9। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर हम इस तरह से निकाल लेते हैं पर किसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। ये अधिकतर पासवर्ड क्रैक के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ इसमें कितने हैं, फिर आप एक कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देते हैं। हैकर्स भी इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कि आपने एक पासवर्ड आपने डाला और उनके पास चला गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें है इतने हैं, फिर वो कॉम्बिनेशन जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो काफ़ी फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे हमने बोला कि फर्स्ट आपका कैरेक्टर क्या है, जैसे आपने दबाया E तो किस लोकेशन पे आ रहा है, वो सब फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है हैकिंग में। नेक्स्ट इज लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड से काउंट करेगा और एक्सट्रैक्ट करके देगा आप लोगों को। रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर एज स्पेसिफाइड। जितने आप स्पेसिफाई करेंगे लेफ्ट साइड से वो आपको निकाल कर दे देगा सामने। लेट्स सपोज कि मैं नेम के लेफ्ट साइड से केवल 4 कैरेक्टर्स में उठाना चाह रहा हूं, 5 कैरेक्टर्स नेम से। सेलेक्ट FT लेफ्ट नेम और ये 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम TRAI NIT ट्रेनिंग। देखिए अब नेक्स्ट है राइट। अब राइट साइड से यहाँ पे मैं राइट लिख देता हूँ, RIGHT राइट। अब राइट साइड से आ गए, पहले के हट गए, चलो इनको मैं और कम कर देता हूँ। 3 कैरेक्टर्स। अब ये ईना, शी, इन, चे, ने, ये सब आएंगे। देखिए लास्ट के 3 काउंट करेगा ना, 1 2 3 कैरेक्टर्स। प्रिंट ऐसे करेगा, रिवर्स में प्रिंट नहीं करना है आप लोग। नेक्स्ट इज IN स्टार। IN स्टार क्या करता है, IN स्टार ये आपका जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर आपको दे देता है, पोजीशन दे देता है कि कहाँ पे क्या चीज आया है। फर्स्ट ऑकरेंस पे, फर्स्ट पे जो चीज मिल जाए। सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम TRAI NIT ट्रेनिंग। यहाँ से देख लेते हैं हम, जैसे ये ई ढूंढने हम इसमें तो हमको मिल जाए, या ईमेल में ये @ ढूंढना है तो आपको पता चल जाएगा कि किस पोजीशन पे @ आ रहे हैं किसी के उसमें। पासवर्ड हैकिंग में भी यूज हो जाएगा। फिर आपके एक से एक लॉजिक बता रहे हैं हम। लेट्स से कि हम ये ढूंढना चाह रहे हैं @ मिल जाए हमको किस पोजीशन पे मिल रहा है। सिलेक्ट
INSTR ईमेल में हमें @ ढूंढना है, किस पोजीशन पे है वो, TRAINING ट्रेनिंग। ओ अरे रे ढूंढने वाला तो हमने उसको उसमें दिया ही नहीं, सर्च कर रहे ना, पहले में है ही नहीं, चौथे में। इट मीन्स कि उससे पहले 3 कैरेक्टर्स हैं। देखो 1 2 3। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि किसी के जीमेल या ईमेल अकाउंट में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। आप @ ढूंढिए, उसमें पता चल जाएगा कि @ से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं सब स्ट्रिंग। अरे इसका तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें इसमें से ई ढूंढना है। देखिए पहले वाले में 2 दिखाया है, इट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे मत जाइएगा। हम चलो इसमें भी ए 1 टाइम ए 1 टाइम ए, हाँ बहुत ज्यादा बार ए है, तो यहाँ पे हम ए ढूंढ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5th पोजीशन पे दिखा रहा है 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2, हालांकि यहाँ पे भी है देखिए ए में, तो ये फर्स्ट ऑकरेंस दिखाता है कि पहली बार में कहां पे मिल गया है। नेक्स्ट इज सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है पार्ट को, किसी के एक पार्ट को। मैं चाहता हूं कि मुझे रेडिफ का ईमेल में से 3 कैरेक्टर्स 1 2 3 कैरेक्टर्स के बाद जो भी मिल जाए मुझे, नंबर ऑफ 3 कैरेक्टर्स। सिलेक्ट SUBSTR ईमेल 3 कैरेक्टर्स के बाद, मतलब 3rd पोजीशन के बाद 5 कैरेक्टर्स मिल जाए फ्रॉम सॉरी ट्रेनिंग TRAINING ट्रेनिंग। देखिए मिल गए। नेक्स्ट इज यू केस एंड लोअर केस, इसको देख लेते हैं। अपर केस एंड लोअर केस। सिलेक्ट यू केस ईमेल फ्रॉम TRAINING ट्रेनिंग, पूरे ही अपर केस में हो गए। अब नेम का देख लेते हैं, ये पूरे ही लोअर केस में आ जाएंगे जितने भी हैं। लोअर केस का देख लेते हैं, एल केस नेम, ये देखिए सब के सब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से हमने आज देखा केवल स्ट्रिंग फंक्शंस। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे डेट एंड टाइम फंक्शंस। बाय स्टूडेंट्स।